ہم نے ہر چیز کو کیا کر دیا ہے؟ سیکولر بنا دیا ہے. سیکریٹ چیز جو خدا کی چیزیں تھیں ان کو ہم نے سیکولر بنا دیا, عام دنیاوی بنا دیا ہے. اور کیوں اس طرح بن گیا؟ بیکاز ہم مسیحی لوگ ہوتے ہوئے ہم اسپیک اپ نہیں کرتے, بولتے نہیں کیا جیزس از دا ریزن فار دا سیزن. سمجھتے ہیں کہ اردو میں بتاؤں, یسوع مسیح اس سیزن کی ریزن ہے. اور یہی مقصد جو مین چیز ہے نا, مین چیز ہی سب لوگ بھول چکے ہیں کہ جیزس از دا ریزن فار دا سیزن, کہ یسوع ہی اس سیزن کی ریزن ہے. آپ دیکھیے بچے ڈیولو ہمارے یہاں پہ, آپ کا شکر ہے نو سینٹا کلاس, میں تو اسے سیٹن کلاس کہوں گی, اس لیے وہ سینٹ نکولس کی کوئی غلطی نہیں, بٹ یہاں پہ سینٹا کو خدا بنا دیا. بچوں کو جیزس کا پتہ نا, سینٹا کا پتہ ہوتا ہے کرسمس پہ. ایسا ہی ہے نا, چاروں طرف دیکھیں سینٹا ہیٹ, سینٹا کپڑے ہو رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کرسمس ٹری, لائٹس. کچھ بھی برا نہیں ہے, لائٹس نتھنگ رانگ ود دیٹ, کوئی اس میں برائی نہیں ہے, مطلب کرسمس ٹری میں کوئی برائی نہیں ہے. بٹ مین پرپس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, واٹر ڈاؤن ہو گئی ہے. واٹر ڈاؤن اردو میں کیا کہیں, جو مین پرپس ہے اس کو ہم نے پانی میں ملا دیا ہے, ایسے یہی ہو گیا نا اردو میں. تو جو ہم نے جو مین پرپس تھا نا اس کو کھو دیا ہے. اور صرف یہ باہر کی لوگ, یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, سوری ٹو سے اف اٹ offends you, بٹ سچ بات ہے, اٹس آل بیکم اباؤٹ کلوتھس. آپ نے سارا سیزن کپڑوں کے بارے میں سوچا ہوگا, بونسز کے بارے میں سوچا ہوگا تاکہ آپ نئے کپڑے لیں, یا پارٹیز, یا کھانا کیا کھانا ہے, یا اس دن کیا بنانا ہے. ایسے ہی ہے نا. Have we thought about why we are celebrating this? کیا کسی نے بھی بیٹھ کے سوچا کہ why are we celebrating? یہ تو سیزن ہے جب یسوع کو ایگزالٹ کیا جانا تھا. ایگزالٹ سمجھتے ہیں جب یسوع کی اور بڑھائی کرنی چاہیے تھی, اس کو اور ہمیں ایگزالٹ کرنا چاہیے تھا. God thank you so much کہ خداوند یسوع آپ ہمارے لیے اس دنیا میں فلیش میں آئے, جسم لے کر آئے. چلیں ہم اسٹارٹ ود فرسٹ اسکرپچر, باتیں ہوتی رہے گی. مرکز 2 باب 1 سے 7 آئے, یہ پورا ہی پڑھ دینا ہے 1 to 7. مرکز 2 باب اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی, اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے, مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا, اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے اور اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے, کفر بکتا ہے, خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. آمین. کیا کہا ان لوگوں نے؟ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں بات تو کرسمس کی ہو رہی تھی, یہ کہاں سے سٹوری آ گئی. لیکن میں آپ کو اس ریزن کی طرف لے کر جا رہی ہوں جس کے لیے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, وہ یسوع ہے. ادھر یسوع گناہ معاف کرنے والا ہے, یسوع ادھر گناہ معاف کرنے والا. آپ بتائیں خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اگر میں نے فلمون کو ناراض کیا, ٹھیک ہے, اور معافی آ کے ہیری مانگ لے, فلمون مجھے معاف کر دیں, وہ تو صحیح بات نہیں ہے نا. جس کے اگینسٹ گناہ کیا گیا وہی صرف معافی دے سکتا ہے نا. کہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر یسوع گناہ معاف کر رہے ہیں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, یا پھر گناہ جو کیا. تو یسوع بیسیکلی کلیئرلی کہہ رہے ہیں آئی ایم گاڈ. یہاں خداوند کا یہ کہنا کہ گناہ معاف کرنے کا, کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, خداوند یسوع پروکلیم کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہے, گاڈ ان فلیش. اب آپ لوگ ایز مسیحی جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اور آپ سب جب سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس, تو آپ لوگوں کو بتانے والے بن سکے ہم یہ کوئی جیسس از ناٹ جسٹ بیبی ان دا مینجر, یسوع کوئی صرف بچہ چرنی میں نہیں ہے, ہی از گاڈ. اب موسٹ کرٹکس آف دا بائبل
क्रिटिक्स जो बाइबल के अगेंस्ट लोग बोलते हैं या जिन्होंने कुछ ना कुछ कीड़े निकाले होते हैं, वो कहते हैं कलाम में तो यीशु ने कभी कहा ही नहीं कि वो खुदा है। ऐसा ही है ना, इधर पहली याद रखना है, जब कोई कहे कि यीशु ने कभी नहीं क्लेम किया कि खुदा है, मैंने बस यही कहा मैं खुदा का बेटा, ऑलवेज टेल दैट ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिंस, सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकते हैं, और यहाँ यीशु गुनाह माफ कर रहे हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि यीशु ने गुनाह माफ किए, प्रूविंग ही इज गॉड। हम इस खुदा की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुदा इन फ्लैश, खुदा हु कैन फॉरगिव सिंस, खुदा जो गुनाह माफ कर सकता है। अब जिन्होंने बातें की है वो कहते हैं कि ना यीशु खुदा नहीं है वगैरह, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप लोगों को बताएंगे कि भाई जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन, तो आपको पता होना चाहिए, आप बताने वाले बन सके कि ये कोई हम खाने के बारे में नहीं है, सिर्फ दावतों के बारे में नहीं है, हम उस बंदे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस खुदा को जो इंसान बन के हमारे लिए आया। तो आप बता सकते हैं कि ये वो खुदा है जो गुनाह माफ करता है, यीशु खुदा है जो गुनाह माफ करता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। लेट्स डू दिस। जॉन 8, यूहन्ना की किताब 8वां बाब। अगर अपने पेपर और पेन में, इफ यू वांट टू राइट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लें। जॉन 8:12 से 30, लेकिन बिल्कुल पूरा ना पढ़े, आप नोट से भी लिखना है तो लिख लें। यूहन्ना 8:12 से 30 आयत, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे 24 आयत और देन 27 आयत। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। और इधर खुदावन क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे कि मैं हूँ जो मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। ये बात सुनी हुई लग रही है, मैं हूँ जो हूँ? कुछ याद आ रहा है किसने कहा था, कब कहा था? कुछ जानी पहचानी बात लग रही है ना? ठीक है, हम अब उस तरफ आते हैं। मेरी आपने कैसे किया, इधर भी लोग समझ आ गई थी। चलिए लेट्स रीड द वर्स 27 अगेन नाउ। 27वीं आयत इसी चैप्टर की। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है, वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने कुछ इधर भी आप पहले यूहन्ना 8:24 आयत में कहा कि मैं वही हूँ, 27वीं आयत में खुदावन फिर कह रहे हैं कि मैं वही हूँ जो हूँ। अब ये बात सबको याद होगी, मूसा की स्टोरी, जब बर्निंग बुश में जब आग लगी तो मूसा ने कहा कि खुदा मैं क्या कहूँ, किसने मुझे भेजा? तो खुदा ने कहा था मैं जो हूँ सो हूँ। जब पूछेंगे तो कहना आई एम, यही है ना? तो खुदावन जो ओल्ड टेस्टमेंट में गॉड ने कहा, इधर जीसस इज सेइंग द सेम थिंग, यीशु मसीह वही सेम चीज कह रहे हैं। सो व्हाट बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वी हैव एवरी रीजन टू सेलिब्रेट, हमारे पास हर रीजन है सेलिब्रेट की, अगर हम मेन चीज को मेन रखें, वो ये है कि यीशु खुदा है और उसने हमारे लिए अपने आप को पस्त किया और फ्लैश में आया, जिस्म में खुदावन मुजस्सम हुआ। इधर 2 आयतों में खुदावन ने क्लियरली कहा है, वो कहते हैं यीशु ने नहीं कहा मैं खुदा हूँ। इधर दोनों आयतों में दोबारा, एक में फॉरगिव किए सिंस, एक में गुनाह माफ किए, दूसरी 2 आयतों में खुदावन कह रहे मैं जो हूँ सो हूँ। अब ट्रांसलेशन में थोड़ा वो डिफरेंट हो जाता है, ग्रीक में यूनानी जुबान में लिखा गया न्यू टेस्टमेंट, और यूनानी जुबान में वही अल्फाज इस्तेमाल हुए, मतलब इट मीन्स द सेम थिंग, वही उसका मतलब है जो खरूज की किताब में मूसा से खुदा की जब बात हो रही थी और कहा था आई एम, मैं हूँ। ठीक है, अब क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस? पहला पॉइंट क्या था? यीशु खुदा है। हाउ डू वी नो दिस? क्योंकि सिर्फ खुदा गुनाह माफ कर सकता है, बाइबल में यीशु ने गुनाह माफ किया। ठीक है, अब 2 दफा जीसस ने प्रोक्लेम कर दिया कि मैं खुदा हूँ, इसीलिए तो हम क्रिसमस मनाते हैं, अपने आप को सारे रिमाइंड कराएं। अभी अभी मेरे पीछे बोले खुदावन, यू आर द रीजन, आप रीजन है इस सीजन के। हाँ जी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिठाइयाँ। एनीवेज, चले अब थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। एक्ट्स की किताब 7 बाब 59 to 60 आयत।
ईमान की किताब उसका 7वां बाब उसके 59 और 60वीं आयत आखिरी दुआ है। तो गौर से सुनिए, I'll ask you question. हाँ जी, 7 और 59 and 60. Pay attention everyone. Quiz us. बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे और ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। ये कुछ नोटिस किया? ये 1000 दफा हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्टिफनेस को संसार किया था ना। इधर वो क्या कह रहा है? किसको रूह सौंप रहा है? खुदा बाप को? कभी नोटिस किया नहीं है? कभी ये आई हैव रेड दिस स्क्रिप्चर मेनी टाइम्स, ये स्क्रिप्चर हम सब ने भी इतनी दफा पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि इधर स्टिफनेस क्लियरली यीशु को कह रहे हैं, यीशु मेरी रूह को ले। सो बेसिकली गॉड, हमें तो पता है खुदा रिसीव करता है स्पिरिट। इधर जीसस को स्पिरिट कौन दे रहा है? अपनी स्टिफनेस। ये बंदा जिसे संसार किया गया अपने लास्ट मोमेंट पे है, एंड ही सो श्योर, वो इतना श्योर है कि यीशु खुदावंद है, कह रहा है खुदावंद मैं अपनी रूह यीशु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। कभी नोटिस किया ये? मैं आज थिंकिंग मैंने कभी नोटिस नहीं किया। हमारे माइंड में ऑलवेज यही आता है कि खुदा को चाहिए, बट इट क्लियरली सेज लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरिट। ही इज टॉकिंग टू जीसस, ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस। वो यीशु के बारे में बात कर रहा है। तो ये वो खुदा है जो स्पिरिट भी रिसीव करता है, जो गुनाह भी माफ करता है, जो इन फ्लैश बार बार क्लेम कर रहा है आई एम गॉड। अगर तो ये ब्लास्फेमस चीज होती, अगर तो ये तौहीन होती खुदा की, तो बाइबल में होती ना ऐसी स्क्रिप्चर्स। बार बार हम देख रहे हैं कि यीशु खुदा है, और इसकी इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। जो क्रिटिक्स कहते हैं कि खुदा यीशु खुदा ने ऐसे क्लेम नहीं किया, हजारों स्क्रिप्चर्स हैं। आप लोग ढूंढना शुरू करें, यू बी एबल टू फाइंड जीसस इन मेनी स्क्रिप्चर्स। अब यूहन्ना 10 बाब 22वीं आयत से 23वीं आयत, एक्चुअली जस्ट रीड 28 फर्स्ट। यूहन्ना 10 बाब 28वीं आयत। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगे। कौन हमेशा की जिंदगी बख्शता है? तो कौन कह रहा है? These are the words of Jesus. यूहन्ना में ये किसके अल्फाज है? और मैं हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। ये किसके अल्फाज है? यीशु के। किसको हम सेलिब्रेट करें? इस खुदा के जो हमें इटर्नल लाइफ देता है, इस खुदा को जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। जीसस इज गॉड थ्रू आउट द बाइबल। यीशु खुदा है पूरी बाइबल में, बिगिनिंग से एंड तक जीसस इज गॉड। अगर हम लोग ने इतना कैजुअल ले लिया इस चीज को कि हम कभी बैठ के इस चीज पे डीपली सोचते ही नहीं कि हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। हम ये सेलिब्रेट करें वो खुदा जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे अमेजिंग बात पता क्या है? बाइबल में लिखा है, the word became flesh, the word came and dwelt amongst us. उर्दू में क्या कहेंगे डैड? नाम मुजस्सम हुआ, वो हमारे बीच में रहने लगा। दरमियान रहा। Actually just read it if you would, John chapter 1 verse 14 से बस पढ़ना। यूहन्ना पहला बाब उसकी 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हम This is the main thing. He is not only God, वो सिर्फ खुदा नहीं है, He came to live among us. वो हमारे साथ dwell होने आया। खुदा का नाम एक इमैनुअल दिया था ना, God with us। वो कोई डिस्टेंट खुदा नहीं है, कोई दूर का खुदा नहीं है, कोई कॉज मतलब दूर जो हो जिसका हमारे साथ कनेक्शन हो। He came to dwell amongst us. वो हमारे दरमियान सुकूनत करने के लिए आया, वो दूर रहने वाला नहीं है। He is Emmanuel, God with us. खुदा हमारे साथ। अच्छा, यूहन्ना 5 बाब
17वीं आयत पढ़े बस. I'm wrapping it up. Don't get antsy. क्या कहते हो सर? यूहन्ना 5 बाब 17वीं आयत. लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ. 18. हाँ जी. इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे और वो ना फक्त सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था. अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था. इंग्लिश में लिखा है मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल विद गॉड. अब जो यीशु के एनिमीज हैं इधर, उस टाइम के यहूदी जिन्होंने बाद में कहा कि इसको क्रूसिफाई किया जाए, जिसको सलीब दी जाए, उनको समझ आ गई थी कि ये तो क्लेम कर रहा है ये खुदा है. हम अभी भी कंफ्यूज रहते हैं. हमसे कोई आके पूछे कि बताएं भी बाइबल में कहाँ लिखा है, हम सोच में पड़ जाते हैं और अपने फेथ को डाउट करना शुरू हो जाते हैं. इधर यहूदी जो यीशु के दुश्मन है उस टाइम के, उनको समझ आ रही है कि ये तो अपने आप को खुदा के इक्वल कह रहा है. इतनी दफा उन्होंने यीशु को मारने की कोशिश की, कई दफा गिराने की कोशिश की, बिकॉज ही केप्ट क्लेमिंग टू बी गॉड. क्योंकि वो बार बार डिफरेंट तरह से क्लेम करते रहे कि मैं खुदा हूँ. अब तूमा रसूल की स्टोरी तो सबको पता है ना. तूमा रसूल की स्टोरी बाइबल में वो कह रहा था कि जब तक यीशु की मैं हाथ में उनके जख्म में उंगली ना डाल, उनको टच ना कर लूं, मैं नहीं मानूंगा कि वो जी उठे. लेकिन किसी ने कभी नोटिस किया कि तूमा ने यीशु को खुदा का? चले पढ़ते हैं यूहन्ना 20 बाब 28वीं आयत. तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा. यीशु ने उससे कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान. तोमा ने जवाब में कहा उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा. ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा. Says my Lord and my God. इधर तूमा रसूल खुदावन को गॉड कह रहे हैं. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो हम सीख सकते हैं जिसमें खुदा हमें पता चलता है कि यीशु ने बार बार कहा कि आई एम गॉड. चाहे गुनाह माफ करके, चाहे ये कह के कि मैं हमेशा की जिंदगी देता हूँ, जिस तरह से भी खुदा ने इतनी बार रिवील किया. अब जब हमें पता है कि मेन रीजन हम इसलिए खुदा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारी सेलिब्रेशन का मकसद ही कुछ और हो. ठीक है. अब जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें, Don't let it just be about things. इसको सिर्फ चीजों के बारे में सोच के ना सेलिब्रेट करें. काफी लोग परेशान होंगे जिनको पे नहीं सही मिली, अच्छे गिफ्ट नहीं खरीद पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं. Don't worry about it. मत परेशान हो. It's not about clothes. आपके पास नए कपड़े कोई बात नहीं. यीशु खुदा बन के आपके लिए आया ताकि आपको हमेशा की जिंदगी मिले. आपके लिए यीशु किस लिए आया? कि आपको निजात मिले. और एक मजे की बात बताऊं, चाहे आप अच्छे कपड़े भी पहन लें, अच्छा खाना भी खा लें, रेस्टोरेंट में भी जाए खा लें, क्रिसमस अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लें, मतलब जैसे सेलिब्रेशन होती है, लेकिन अगर यीशु आपके दिल में नहीं है ना, आपको फिर भी जहन्नुम में ही जाना है. तो फायदा इसका. तो आई नो आप सब परफेक्ट हैं शायद, लेकिन आई वुड लाइक कि आप सब अपने दिलों में झांकें और खुदावन से पूछें कि खुदावन क्या मैं आपके साथ सही तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूँ. क्या यीशु मैं आपको खुदा बन के सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि नहीं. बाइबल में लिखा है ये लोग तो मुंह से तो मेरी हम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं. मुकाशवा की किताब में खुदावन कहते हैं कि देख मैं खड़ा तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ. और ये कलीसिया से कहा गया है. तो ये डोंट लेट इट बी अनदर क्रिसमस. ये एक और वैसा क्रिसमस ना बने जब आपका दिल खुदा से दूर है बट आप सेलिब्रेशन पक्की कर रहे हैं. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. अभी अगर यीशु मसीह आ गए तो क्या बनेगा हमारा? चाहे जितना मर्जी अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट कर लें, यीशु अगर अभी आ गए या खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से यू एंड अप डाइंग, मैं डरा नहीं रही, देन व्हाट्स द पॉइंट? चाहे आपके पास बेस्ट कपड़े हो, बेस्ट ब्रांड के कपड़े हो, क्रिसमस कुड बी मीनिंगलेस फॉर यू. द मेन पर्पस ऑफ क्रिसमस इज खुदा हमारे लिए फ्लैश में आए. ठीक है. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था. ये हमारी मेन क्रिसमस रीजन है. हालेलुया. चलें लेट्स प्रे टुगेदर. आई एम गोना प्रे. सब अपनी आंखें बंद करें.
जिन्होंने तो पहले से खुदावंद को कबूल किया, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप बचपन से चर्च आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको बाइबल की सारी आयतें आती हैं, क्योंकि ये सब हो भी, लेकिन अगर आपका खुदावंद के साथ रिश्ता नहीं है तो भी आप जहन्नुम में जाएंगे। चाहे आप बाइबल स्कॉलर हैं, चाहे आपको बाइबल A to Z आती है या बड़ी आप गीत गाते हैं, लेकिन अगर खुदावंद के साथ आपका रिश्ता नहीं है तो आप जहन्नुम में जाएंगे। ये क्रिसमस अपना दिल खुदा को दे दें। इससे बड़ा आपकी क्रिसमस सेलिब्रेशन कुछ नहीं हो सकती कि आप दिल अपना खुदा को दे दें। अब अपनी आंखें बंद करें और देखें आप खुदावंद के साथ ठीक है। क्रिसमस सेलिब्रेट करें, गालियां देते हैं, क्रिसमस पे क्या प्लान है? अल्कोहल पीने का? कैसे सेलिब्रेट करनी है? ड्रंक होके सेलिब्रेट करनी है? फायदा? अपनी आंखें बंद रखें एंड चेक योरसेल्फ, चेक योर हार्ट्स। अगर खुदावन खुदा है, शुड वी वर्शिप हिम? अगर खुदावन खुदा है तो हमें उसे वर्शिप करना है। तो व्हाट बेटर डे, इससे बेटर क्या दिन होगा कि हम क्रिसमस वाले दिन खुदावन को ट्रूली वर्शिप करें, कि सच्चे दिल से खुदा को वर्शिप करें। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी है जो आपको खुदावन से दूर करता है, चाहे वो अच्छी चीज भी है, लेकिन अगर वो आपको खुदा से दूर कर रही है, पुट इट अवे। खुदावन से कहें, खुदावन तू खुदा है, आई गिव माई लाइफ टू यू। अगर तो आप ऑलरेडी खुदावन के साथ चल रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत गलती वगैरह हुई, तो दिस इज द गुड टाइम कि आप अपने आप को रीडेडिकेट करें, अपने आप को खुदावन के साथ दें, और ताकि आपकी लाइफ में रिवाइवल आए। और अगर आपने कभी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज दिन है कि आप खुदावन को कबूल करें, वरना क्रिसमस इज मीनिंगलेस। अगर आपने कभी यीशु को दिल नहीं दिया, टुडे इज द डे। आई वुड लाइक कि मैं शो ऑफ हैंड्स कराऊं, लेकिन आई वोंट। आपको पता है इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। अगर आप खुदावन के साथ ठीक नहीं चल रहे तो दिस इज द टाइम अपने दिल में झांक के और प्रेयर करना शुरू करें। खुदावन से, खुदावन आपका शुक्र हो कि आपने मुझसे इतना प्यार किया कि मेरी खातिर अपना बेटा इस दुनिया में दे दिया। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप हलाक होना नहीं चाहते, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू गिव योर हार्ट टू द लॉर्ड। चाहे छोटी चीज है, चाहे बड़ी चीज है, चाहे अच्छी चीज है, जो कोई भी चीज आपको खुदावन से दूर कर रही है, सरेंडर इट। खुदावन के साथ चलें तो ही you'll have a good Christmas. Daddy,